friends, welcome back to my channel. I am back with another video. In this video, we will discuss some of the extra question answers of lesson number 2 Geography Class 8 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So let's get started. The first question is, what are the main reasons for the uneven distribution of population in the world? So the answer to this question is the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristics of land and climate. जो uneven distribution है population की different parts of the world में, वो है mainly इस वजह से है कि जो varied characteristics होती हैं हर जगह पे, मतलब कि अलग अलग characteristics होती हैं land और climate की. Then the rugged topography, steep slopes of mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. जो rugged topography मतलब ऊपर खाबड़ जगह है, steep slopes है mountains यानी कि ऐसे जो लो लाइंग एरियाज हैं जिनमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, डेजर्ट एरियाज हैं, थिक फॉरेस्टेड एरियाज हैं, वो नॉर्मली कम पॉपुलेटेड होते हैं या वो अनइनहैबिटेड होते हैं, मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता. डिफाइन लैंड यूज. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads, setting up industries. This is commonly termed as land use. Land use जो land है उसको use करा जाता है different purposes के लिए such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up industries. इसको कहा जाता है land use. Land use की जो definition है वो है कि the way in which a particular piece of land is used is known as land use. Land use वो तरीका है जिसमें एक पर्टिकुलर पीस यानी कि एक अकेले पीस ऑफ लैंड को यूज करा जा रहा है, उसको कहा जाता है लैंड यूज. Then the next question is, name the physical and human factors which determine the land use pattern. Physical और human factors बताओ जो determine करते हैं यानी कि बताते हैं लैंड को यूज करने के पैटर्न को. The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. जो use होता है land का उसको determine करा जाता है physical factors से, जैसे कि topography, soil, climate, minerals कि वहाँ पे कितना पानी available है. Then human factors such as population, technology are also determinants of land use pattern. जो human factors हैं जैसे कि population कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं और वहाँ की technology कितनी ज़्यादा modern है, कितनी ज़्यादा latest है, इसको ये भी important factors होते हैं जो determine करते हैं कि land को किस तरीके से use करा जाएगा. So the next question is common property resources. Community land is owned by the community for common uses like collection of water, fruits, nuts, medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. जो community land होता है ये own करा जाता है किसी community से common purposes के लिए, जैसे कि collection of water, fruits को collect करना, nuts को collect करना, मेडिसिनल हर्ब्स, ये सारे जो कम्युनिटी लैंड्स होते हैं इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बाय कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. मेजर प्रॉब्लम्स जो एनवायरनमेंट को हो रही हैं कंस्ट्रक्शन और बढ़ने क्या एग्रीकल्चर के, वो है लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन. Then the next question is, mention some common methods to conserve land resources. And the answer is first afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and checks on overgrazing. Mention करो कुछ common methods जिनको यूज करा जा सकता है कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए लैंड के रिसोर्सेज को. पहला है एफोरेस्टेशन यानी कि और पेड़ लगाना. Then the next is land reclamation. The next is regulated use of chemical pesticides and fertilizers and checks on overgrazing. मतलब कम करो या रेगुलेट करो यूज पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का और चेक करो कि ओवरग्रेजिंग तो नहीं हो रही है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सॉइल, मेंशन द फैक्टर्स व्हिच मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल क्या चीज़ है उसको डिफाइन करो और मेंशन करो फैक्टर्स जो बना देते हैं सॉइल को फर्टाइल। द थिन लेयर of grainy substance covering the earth, the surface of the earth is called soil। जो thin layer यानी कि पतली लेयर होती है grainy substance की जो कवर करती है surface of the earth को, उसको कहा जाता है soil। Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth। जो soil है बना होता है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदर रॉक से जो हमको अर्थ पे मिलते हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये सब होता है वेदरिंग के प्रोसेस से। फर्दर वीडियो में हम देखेंगे कि वेदरिंग क्या होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जो राइट मिक्स है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का, वो बना देता है सॉइल को फर्टाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। The major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors। जो major factors है soil formation के वो है कि जो parent rock है उसका nature कैसा है और climatic factors। Other factors are the topography, role of organic matter and time। जो दूसरे factors हैं वो है topography, organic matter का role और time। Then the ninth question is explain the various methods of soil conservation। First is mulching। Bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw। It helps to retain soil moisture। जो खाली हिस्सा होता है दो प्लांट्स के बीच का है, मतलब कितने भी प्लांट्स के बीच का हो सकता है, उसको कवर करा जाता है ऑर्गेनिक मैटर की लेयर से, स्ट्रॉ की तरह। ये हेल्प करता है रिटेन करने के लिए सॉइल का मॉइस्चर। देन कॉन्टूर बैरियर्स, stones, grass, soil are used to build barriers along contours। Trenches are made in front of the barriers to collect water। जो contour barriers होते हैं वो मतलब जो stones, grass, soil होते हैं उनको यूज करा जाता है बनाने के लिए barriers। contours के साथ में जो trenches हैं उनको बनाया जाता है in front of the barriers collect करने के लिए पानी को। Next is rock dam। Rocks are piled up to slow down the flow of water। This prevents gullies and further soil loss। जो rocks हैं उनको pile up करा जाता है slow down करने के लिए flow of water। ये prevent करते हैं gullies को और further soil loss को। Then the next is terrace farming। Broad flat sheds or terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops। They reduce surface runoff and soil erosion। जो broad यानी कि चौड़े जो flat sheds होते हैं और terraces होते हैं वो बनते हैं steep slopes of the mountains पे, ताकि जो ये flat area है वहाँ पे वो crops को उगा सकें। ये रिड्यूस करते हैं सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन, क्योंकि अगर वहाँ पे प्लांट उग गए तो जो स्टीप स्लोप्स पे तो जो सॉइल है वहाँ का वो लूज है, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं सॉइल को एक जगह पे, देन तो इजीली वो रुक जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में होता है कि जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं उनको ग्रो करा जाता है ऑल्टरनेट रोज में और उनको बोया जाता है डिफरेंट टाइम्स पे प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल को फ्रॉम रेन वॉश। Then the next is contour plugging। जो प्लगिंग है वो करी जाती है पैरेलल टू contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope। And the next is shelter belts। in coastal areas and dry region जो रोज होती हैं ट्रीज की उनको प्लांट करा जाता है चेक करने के लिए विंड की मूवमेंट को और प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल के कवर को। And the next question is what is water cycle? Cycling through the oceans, the air, the land and back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff। This is referred to as water cycle। जो water है वो सबसे पहले जाता है oceans में, then उसके बाद वो जाता है air में in the form of clouds, then उसके बाद वो precipitate होता है यानी कि जो रेनिंग होती है उसको कहा जाता है precipitation और वो आ जाता है लैंड पे वापस। देन उसके बाद आएगा कि वो दोबारा से जो लैंड पे पानी है वो जाएगा तो ओशंस में ही, तो ये पहुंच गया। देन ये सबसे पहले जो पानी से वो धुआं बना वाटर वेपर बनी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। देन जो इवेपोरेशन के बाद जब क्लाउड भारी हो गया तब वो गिरेगा वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में और वो पहुंचेगा लैंड में,
थ्रू द प्रोसेस ऑफ precipitation. देन लैंड से वो पहुंचेगा, वापस से लैंड पे फ्लो करता करता वो ओशन में पहुंच जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ रन ऑफ. पूरी बनी, इसको हम कहेंगे वाटर साइकिल. Question is list out the various ways in which water can be used. वाटर जिन तरीकों से यूज करा जा सकता है उनको लिस्ट आउट करो. और हमको इस क्वेश्चन में ये भी बताना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कॉज कर रही हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द यूजेस. ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. जो ह्यूमंस होते हैं वो यूज़ करते हैं वाटर को वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि पीने के लिए, धोने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज में, और जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटीज. देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें शॉर्टेज ऑफ वाटर कॉज करें. वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ fresh water. Then the next question is name the major contaminants of water. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, industrial effluents. नाम मतलब बताओ कि जो मेजर कंटामिनेंट्स हैं वाटर के वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड सैवेज. जो सैवेज होते हैं मतलब उसको या तो पूरा तरीके से वो ट्रीट नहीं हुआ या फिर वो आधा ट्रीट हुआ है. देन जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्रीकल्चरल केमिकल्स. हाउ डू द कंटामिनेंट्स पोल्यूट द वाटर. जो कंटामिनेंट्स है वो पोल्यूट करते हैं वाटर को विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स. मोस्ट ऑफ दीज जो केमिकल्स, इनमें सब ज़्यादा केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये पहुंच जाते हैं ह्यूमन बॉडीज तक वाटर से. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज suggest few ways to conserve water. Forest and other vegetation cover slow down the surface runoff and replenish underground water. जो forest और दूसरे vegetation cover है ये slow down कर देते हैं surface runoff को, replenish कर देते हैं underground water को. जो water harvesting है ये दूसरा method है जिसको use करा जा सकता है safe करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए surface runoff को. The canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. ड्राई रीजन्स में जहाँ पे हाई रेट्स होते हैं एवेपोरेशन के, वहाँ पे जो ड्रिप सिस्टम होता है या ट्रिकल सिस्टम होता है इरिगेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. और जो स्प्रिंकलर्स हैं वो इफेक्टिवली इरिगेट कर देते हैं एरिया को, चेक करते हुए वाटर की लूजेस, सीपेज और इवेपोरेशन से. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायोस्फीयर. Natural vegetation and wildlife exist only in narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere, that is known as the biosphere. जो natural vegetation और wildlife है वो सिर्फ survive कर सकती है उस narrow zone of contact में जो कि होता है lithosphere, hydrosphere and atmosphere के बीच का. इसको कहा जाता है biosphere. Then the next is define ecosystem. इन द बायोस्फीयर जो लिविंग बींग्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम. हाउ प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. प्लांट्स हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, दे प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स ऐड करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स हेल्प करते हैं स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर, कहते हैं फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स. Then the next question is classify the forest according to rainfall. Rainfall के according जो forest है उनको classify करना है. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो थ्राइव कर सकते हैं. इस वजह से जो फॉरेस्ट होते हैं उनको एसोसिएट करा जाता है एरियाज पे जहाँ पे अबंडेंट वाटर सप्लाई
होती है। जो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस होते हैं वो ग्रो करते हैं उन रीजन्स पे जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है और फॉर्म कर देते हैं ग्रासलैंड्स और दी वर्ल्ड। जो थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स होते हैं वो ग्रो करते हैं ड्राई रीजन्स में जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। Then next question is name some human and physical factors which accelerate the process of extinction. नाम बताओ उन ह्यूमन और फिजिकल फैक्टर्स के जो हेल्प मतलब जो जल्दी कर देते हैं प्रोसेस एक्सटिंक्शन का। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, सॉइल इरोजन, constructional activities, forest fires, tsunami, landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. What steps are taken by the government to protect natural vegetation and wildlife? ऐसे कौन से steps हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए natural vegetation और wildlife को? Natural parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. जो natural parks हैं, wildlife sanctuaries हैं और जो biosphere reserves हैं, हम इनके बारे में further वीडियो में देखेंगे। वो बनाए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी natural vegetation और wildlife को। Then the next is conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. जो कंजर्वेशन है क्रीक्स की, लेक्स की और वेटलैंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेव करने के लिए इस प्रीशियस रिसोर्स को डिप्लेक्शन से। Awareness programs like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at regional and community level. जो awareness programs है जैसे कि social forestry और Van Mahotsav उनको encourage करना चाहिए regional और community level पे। जो स्कूल चिल्ड्रन है उनको encourage करना चाहिए करने के लिए बर्ड वॉच करने के लिए और विजिट करने के लिए नेचर कैंप्स ताकि वो अप्रिशिएट करें हैबिटेट वेरियस स्पीसीज का। Now we will discuss some of the important things in this chapter. 90% of the world population occupies only 30% of the land area. The remaining 70% of land area is either sparsely populated or uninhabited. जो ये पूरा हमारा surface of the earth है, एक मिनट, ये जो हमारी पूरी surface of the earth ये हमारी अर्थ है, तो जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो सिर्फ 70% ऑफ द पार्ट में रहती है, सॉरी 30% ऑफ द पार्ट में रहती है 90% पॉपुलेशन, और जो बाकी की 10% है वो यहाँ पे रहती है। ये हमारे 70% है पूरी अर्थ को। और ये landslides are simply defined as the mass movement of rocks, debris or earth down the slope. जो landslide है उनको simply define करा जाता है as the mass movement rocks की, debris की या फिर earth की down the slope. Weathering, breaking up of and decay of exposed rock by temperature changes, frost action, plants, animals and human activities. Weathering होती है breaking up of rocks और उनका decay exposed rocks का temperature changes की वजह से, frost action की वजह से, plants और human activities की वजह से. It takes hundreds of years just to make 1 centimeter of soil. Then the parent rock determines the texture, chemical properties, mineral content, permeability of soil. Parent rock determine करते हैं color, texture, chemical properties, mineral content और permeability of the soil. Relief, it is an altitude and slope which determine accumulation of soil. ये ऑल्टीट्यूड है और स्लोप है जो डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन सॉइल की. फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन सॉइल. ये इफेक्ट करते हैं रेट के कितनी ह्यूमस जो है वो फॉर्म होएगी सॉइल में. टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. जो टाइम है वो बताते हैं थिकनेस सॉइल प्रोफाइल की. क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन. जो टेम्परेचर और रेनफॉल है ये इन्फ्लुएंस करते हैं वेदरिंग का रेट और ह्यूमस फॉर्मेशन सॉइल में. जो अमरेली सिटी है कि लोकेटेड है सौराष्ट्र में जो कि गुजरात के अंदर है. जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स हैं वर्ल्ड के वो ग्रुप करे गए हैं एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा.
Now let's discuss the definition of natural park. Natural park is a natural area designated to protect the ecological integrated of one or more ecosystems for the present and future generations. जो natural park है वो एक natural area है जिसको designate करा जाता है protect करने के लिए ecological integrated of एक या एक से ज़्यादा ecosystems मतलब अभी की और आने वाली generations के लिए. Now the definition of biosphere reserves. Our biosphere reserves are the series of protected areas which are linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development. जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये सीरीज होती हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की जिनको लिंक करा जाता है इकट्ठे एक ग्लोबल नेटवर्क से जिनका काम होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना दिखाना रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. नाउ लेट्स डिस्कस द फुल फॉर्म ऑफ CITES. And its full form is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. Thank you. Like my video, share it and also subscribe to my channel. For latest updates, press the bell icon.